Let me make you fast discusses with the assessment of an art-first English expression, bigger description that goes beyond the platitudinous English expression to encapsulate something that is made up of difficult or impossible to describe or explain. इसका मतलब ये है कि जो कोई भी चीज़ जिसे समझना या डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए हम इस आर्ट इंग्लिश एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हैं, बेगर डेस्टिनेशन. So let's get the hang of some examples. Notwithstanding, I'm a quintessential Sasquipedalian, my scroundiferous English biggest description for the hippopotamus Sasquipedaliophobic. Notwithstanding means because. आप सिंपल इंग्लिश में because का इस्तेमाल करते हैं but, और दो although ऐसे words का इस्तेमाल करते हैं सिंपल इंग्लिश में. आप आर्ट इंग्लिश पे उसे नॉटविथस्टैंडिंग कह सकते हैं. I'm a quintessential Sasquipedalian. Quintessential means the best example of something. Sasquipedalian means a person who loves long and difficult English words. क्योंकि I'm a quintessential Sasquipedalian, it means I'm the best example of a person who is fond of difficult and long English vocabulary. My scroundiferous English. Scroundiferous means excellent. तो मेरा जो excellent English है, it beggars description. मेरा जो advanced English है, excellent English है, extraordinary English है, उसे समझना बहुत difficult है, बहुत मुश्किल है. For the hippopotamus Sasquipedaliophobic. Hippopotamus Sasquipedaliophobic means those who are afraid of long and difficult English words. जैसे यहाँ पे मैंने बताया Sasquipedalian. Sasquipedalian means someone who loves or someone who is fond of long and difficult English vocabulary. और Hippopotamus Sasquipedaliophobic means someone who is afraid of, मतलब जो जिसके लिए इंग्लिश के जो advanced वर्ड होते हैं, advanced vocabulary होते हैं, उससे जिस इंसान को डर होता है, उसे कहते हैं Hippopotamus Sasquipedaliophobic. तो क्योंकि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कि जिसे इंग्लिश के बहुत एडवांस डिफिकल्ट वर्ड से प्यार होता है, पासन होता है. आई एम रियली पैशनेट अबाउट वर्ड्स. आई एम ए क्विंटेसेंशियल Sasquipedalian. तो मेरा जो एक्सेलेंट इंग्लिश है उसे समझना उन लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट है जो कि इससे डरते हैं. Notwithstanding, I am a quintessential Sasquipedalian. My scroundiferous English beggars description for the hippopotamus Sasquipedaliophobic. Next example is the Snollygaster's orchestration beggars description for the suffrage. The Snollygasters. Snollygasters means the unprincipled politicians. इससे पॉलिटिशियंस जो कि सब बेईमान होते हैं, धोखेबाज होते हैं, चीटर्स होते हैं, उन्हें कहते हैं स्नॉलीगास्टर्स. ऑर्केस्ट्रेशन. ऑर्केस्ट्रेशन मीन्स उनका जो प्लानिंग है, जो षड्यंत्र होता है, उसे कहते हैं ऑर्केस्ट्रेशन. बेगर्स डिस्क्रिप्शन फॉर द सफरेज. सफरेज के लिए, सफरेज मीन्स वोटर्स, जो मतदाता होते हैं, जो इलेक्शन में वोट देके पॉलिटिशियंस को जिताते हैं, उन्हें कहते हैं सफरेज, मताधिकार. जो भी वोटर्स, आप जो सिंपल इंग्लिश में जिसे वोटर्स कहते हैं, उन्हें कहते हैं एडवांस इंग्लिश में सफरेज. फॉर द सफरेज, जो वोटर्स हैं, तो उनके लिए उनकी जो षड्यंत्र होता है पॉलिटिशियंस का, उसे समझना बहुत मुश्किल है. स्नॉलीगास्टर्स orchestration beggars description for the suffrage voters. Next example is the pre-antepenultimate chapter of the book is much too Kafka's and it beggars description. The pre-antepenultimate. Pre-antepenultimate means fourth from the last. मतलब चूंकि अंत से फोर्थ नंबर पे रहता है, उसे कहते हैं प्री एंटीपेनल्टीमेट चैप्टर. मान लीजिए कि आपके बुक में एक चैप्टर है जो कि लास्ट से, अंत से शुरू होके जिसका नंबर 4 पेज पे होता है, उसे कहेंगे प्री एंटीपेनल्टीमेट चैप्टर. द प्री एंटीपेनल्टीमेट चैप्टर ऑफ द बुक इज मस्ट टू काफ्कास. काफ्कास मीन्स बहुत डिफिकल्ट, समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट एंड इट बेगर्स डिस्क्रिप्शन, और उसे समझना बहुत मुश्किल है. तो बुक में जो प्री एंटीपेनल्टीमेट चैप्टर है, जो चैप्टर 4th फ्रॉम द लास्ट, जो अंत से 4th प्लेस में जो चैप्टर है 4th पेज पर,
उसे कहते हैं प्री एंटी पेनल्टीमेट चैप्टर, जो कि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत काफकास्क है, जिसे समझना बहुत मुश्किल है। द प्री एंटी पेनल्टीमेट चैप्टर ऑफ द बुक इज मोस्ट टू काफकास्क and it biggest destination. Last one is, I obfuscated the alchemist not to be esoteric while indoctrinating this topic in as much as it biggest destination. I obfuscated. Obfuscated means I requested the alchemist. Alchemist means जो टीचर जो एक्सपर्ट होते हैं उन्हें कहते हैं alchemist. Not to be esoteric. Esoteric means ऐसे तरीके से पढ़ाना जो कि बहुत कम लोगों को समझ में आता हो, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट तरीके से जो पढ़ाते हैं वो सिर्फ जो बहुत ब्रिलियंट होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, सिर्फ उन्हें ही समझ में आता है, सबको समझ में नहीं आता है। मान लीजिए कोई क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनमें से कोई बहुत टैलेंटेड होते हैं, जो कुछ स्टूडेंट्स जो एवरेज में होते हैं, तो ऐसे पढ़ाना चाहिए एक्चुअली कि सबको समझ में आए। तो जो एसोटेरिक नेचर होता है, मतलब ऐसे पढ़ाना जो सिर्फ कुछ लोगों को समझ में आता हो, कुछ इंटेलिजेंट या फिर कोई ब्रिलियंट या फिर टैलेंटेड लोगों को समझ में आता हो। तो मैं जो एक्सपर्ट थे, जो टीचर थे, उन्हें रिक्वेस्ट किया कि आप ऐसे तरीके से ना पढ़ाएं कि सिर्फ कुछ ही लोगों को समझ में आए, ताकि आप ऐसे पढ़ाएं जैसे सबको समझ में आए। नॉट टू बी एसोटेरिक while indoctrinating. Indoctrinating means while giving lecture or teaching. Indoctrinating means teaching, पढ़ाना। दिस टॉपिक, जब आप इस टॉपिक को पढ़ाते हैं तो ऐसे मत पढ़ाए कि एसोटेरिक तरीके से मत पढ़ाइए, ताकि ऐसे मत पढ़ाए कि जैसे सिर्फ जो ब्रिलियंट और टैलेंटेड है उन्हें समझ में आए। आप ऐसे पढ़ाएं ताकि सबको समझ में आए। इनास्मस मीन्स वीकस। और एक बताया था मैंने आपको एडवांस वर्ड नटीस्टैंडिंग, यहाँ पे और एक एडवांस वर्ड आप यूज कर सकते हैं, इनास्मस मीन्स वीकस। इट बेगस डिस्क्रिप्शन, क्योंकि इस टॉपिक को समझना बहुत मुश्किल है। I obfuscated the alchemist not to be esoteric while indoctrinating this topic in as much as a biggest destination. So that's all for today. Obfuscating you to be fast because with a short fast English expression, bigger destination to grasp yourself. Thank you.